So good morning everyone. Welcome to online classes of Leal Public School. Today we will continue our science chapter, chapter number 9, and chapter name is nervous system. And what we will learn in this chapter, we will discuss about nervous system, and in nervous system we will discuss brain, spinal cord, nerves, then we will discuss reflex action and about sense organs, okay, like eyes, ears, nose, tongue and skin. So let's start chapter number 9, that is nervous system. Which organ system of your body helps you in learning and thinking? It is the nervous system. आपकी बॉडी का कौन सा सिस्टम है, कौन सा ऑर्गन सिस्टम है दैट आप जो कि आपको लर्निंग में एंड थिंकिंग में हेल्प करता है, दैट इज आवर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है ये हमें थिंकिंग में, लर्निंग में हेल्प करता है. इन आवर प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट many type of organ system like respiratory system, circulatory system, skeletal system. Okay, so same like this, it's a nervous system and it control our learning, thinking and all other body system and the sense organ. Okay, so the nervous system control all other body systems and the sense organs. It is an important organ system of our body. It helps us to see, read, write, think, learn, feel, response, etc. Okay, so जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी के जितने भी अदर ऑर्गन सिस्टम जो हमने डिस्कस किए थे उन सभी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है एंड हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है. ओके, ये हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है एंड ये हमें देखने में, रीड करने में, राइट करने में हेल्प करता है. ओके, so nervous system is a complex network of nerves and cells that carry messages to and from the brain and spinal cord. Okay, so look at the activity, look at the picture below and fill in the blank with correct words. First one is Aman is tasting the ice cream with his tongue. Okay, here we use our which sense organ? Tongue. Okay, so you can write here tongue. Next one is Amrita is smelling the flower with her nose and the Amrit is feeling the cold with his skin. Okay, skin की help से हम क्या करते हैं? Feel करते हैं ना? Heat, cold, pain, pressure, etc. ये सब हम skin की help से क्या करते हैं? Feel करते हैं. So Amrit is feeling cold with his skin. Clear everyone? Now come to next. Nervous system. So nervous system is made up of brain, spinal cord and nerves. The brain and spinal cord are our body central nervous system. Okay, and the brain is command center and spinal cord is the pathway for the messages sent by the brain to the body and from the body to the brain. Okay, इसके nervous system में हम 3 part discuss करेंगे, that is brain, spinal cord and nerves. Okay, first one is brain. So it is the control center of our body and it acts like a computer. So in our body, nervous system has 2 main parts. First one is central nervous system and the second one is peripheral nervous system. Central nervous system is made up of brain and spinal cord and peripheral nervous system is made up of nerve cells or neurons. Okay. So first we will discuss central nervous system. Central nervous system include brain and spinal cord. Okay, so one by one brain and spinal cord discuss करेंगे. After that we will discuss nerve cells or neurons. So brain is the control center of our body and it acts like a computer. Okay, brain has many folds and grooves. Okay, and these gives it the added surface area needed for storing the body's important information. Okay, so in the picture brain जो है इसमें बहुत सारे grooves and folds होते हैं. Okay, and जो कि हमारे ब्रेन को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एक्स्ट्रा जो सरफेस एरिया है, स्पेस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि यहाँ पर हमारी बॉडी की जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. ओके, एंड द स्पाइनल कोड,
is like a pathway. Okay, it's a bundle of nerves. Spinal cord is a bundle of nerve. Through it, messages travel to and from between the brain and the rest of the body. Okay, brain से जो messages हैं spinal cord के through आपकी rest of the जो body है वहां पर send किए जाते हैं, and rest of the body से जो messages receive किए जाते हैं वो spinal cord के through brain तक send किए जाते हैं. Okay. And nerves, they act like telephone wires and connect every part of the body to the brain. Okay, जो nerves हैं वो telephone wires की तरह work करती हैं. Okay, and body का जो every part है उससे किससे connect रखती हैं? Brain से. Okay. Now come to next part. First one, that is brain. So the brain is an important organ of our body. It is the control center of our body. It sends and receives messages from different parts of the body through spinal cord and nerves. Okay, जो brain है वो हमारी body का बहुत ही important organ है, control center है हमारी body का. Okay, and इसका क्या work है? ये स्पाइनल कोड एंड नर्व्स के थ्रू बॉडी को मैसेज सेंड करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, एंड वहां से आने वाले मैसेजेस को रिसीव करता है. ओके, एंड इट हैज मैनी फोल्ड एंड ग्रूव्स. इसमें देखिए इन द पिक्चर आपको बहुत सारे फोल्ड एंड जो ग्रूव्स हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो दीज फोल्ड एंड ग्रूव्स गिव इट द एडेड सरफेस एरिया नीडेड फॉर स्टोरिंग द बॉडीज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. ओके, and it's protected by the bony skull. We have already discussed in our previous chapter skeletal system में हमने discuss किया था कि जो हमारा bones skeletal system किससे made up होता है? bone से. Okay, and skull क्या है? bony structure. Okay, तो हमारी skull में brain जो है वो protect रहता है. Clear? The space between the brain and the skull is filled with the fluid that act as a shock absorber. ब्रेन एंड स्कल के इन बिटवीन जो स्पेस रहता है उसमें एक फ्लूइड फिल रहता है. ओके, एंड फिल्ड विद द फ्लूइड दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एंड इन शॉर्ट फॉर्म CSF. ओके, जो फ्लूइड फिल रहता है ब्रेन एंड स्कल के इन बिटवीन स्पेस में, उस फ्लूइड को हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF. ओके, and the brain float in CFS. इस जो ये जो फ्लूइड है इसमें ब्रेन क्या करता है? फ्लोट करता है, and it fluid act as a cushion and shock absorber. एक कुशन की तरह. ओके, जो एक पिलो या कुशन हम अपने घर पे यूज करते हैं, सेम इट एज इट इज ये वर्क करता है एक कुशन की तरह या एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह, ताकि जो ब्रेन है उस ब्रेन जो सेल्स हैं वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं. ओके, द फ्लूइड सर्कुलेट थ्रू द ब्रेन्स होलो स्पेस and around the surface of the brain. Okay, and the brain has hollow fluid filled cavities called ventricles. Okay, and brain में जो cavities हैं जिनमें ये fluid filled रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ventricles कहते हैं. and this fluid act as a protective layer. mainly इस fluid का काम क्या है? brain को protect करने का काम है, shock से shock observer है, एंड कुशन की तरह वर्क करता है, एंड ब्रेन के अराउंड क्या बनाता है? प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ताकि ब्रेन को कोई भी डैमेज नहीं हो. क्लियर? दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज, एंड द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स. ओके, फर्स्ट वन इज cerebrum, then cerebellum, and third one is medulla oblongata. Clear? So first we will discuss cerebrum. Cerebrum, it is the largest part of the human brain. It has many grooves and folds. It is the center of intelligence and it controls our sense organ, and it is responsible for thinking, learning and reasoning. Okay, जो cerebrum है, see in the picture, हमारे brain का जो structure है, या जो पिक्चर आप देख रहे हैं इट्स अ वॉलनट है ना, वॉलनट की तरह, एक अखरोट की तरह दिख रहा है ना. सो ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का दैट इज सेरेब्रम. उसे हम क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं. एंड इसमें बहुत सारे मैनी हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं एंड फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो अ फोल्ड इज कॉल्ड अ जाइरस. इसमें जो फोल्ड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं जाइरस. एंड एक वैली जैसी स्ट्रक्चर या एक खांच जैसी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ग्रूव जैसा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड sulcus. Okay, so the fold is called a gyrus and the valley is called sulcus. Clear?
एंड ये हमारा किसका सेंटर है, इंटेलिजेंस का सेंटर है जो सेरेब्रम है। एंड ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं लाइक ईयर्स, आईज, नोज, स्किन एंड टंग, हमारे सेंस ऑर्गन को भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन का जो सेरेब्रम पार्ट है वो कंट्रोल करता है। ओके, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग। जो भी आप सोच रहे हैं, कुछ आप लर्न कर रहे हैं, कुछ रीजन कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, ओके, वो सारी जो एक्टिविटीज हैं वो किससे रिलेटेड है, ब्रेन के सेरेब्रम पार्ट से। ओके, so the human brain is relatively large and very wrinkled. Okay, see in the picture, ये जो brain है आपको कैसा दिखाई दे रहा है, large, and इसमें बहुत ही wrinkled जो part है ये present रहता है। Okay, and wrinkle increase the surface area for neurons. ये जो wrinkles आपको दिखाई दे रहे हैं, folds and grooves जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो neurons या nerve cell हैं उनके लिए surface area increase कर रहे हैं। Okay, and the reason that our brain have wrinkled and वॉलनट शेप, ओके, दैट्स व्हाई हमारा जो ब्रेन है वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है, रिंकल्ड दिखाई दे रहा है एंड वॉलनट शेप का दिखाई दे रहा है। ओके, बिकॉज ये जो रिंकल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, न्यूरॉन्स के लिए या नर्व सेल्स के लिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज cerebellum. It lies below the cerebrum and it controls the coordinate the movement of muscles. It also helps in maintaining the balance of our body. Okay, जो cerebellum part है ये कहाँ lie करता है, कहाँ पर located है, below the cerebrum. cerebrum के नीचे की तरफ जो cerebellum part है ये वहाँ पर lie करता है। and it control and coordinate the movement of muscles. ये हमारी body में होने वाली जो भी muscles का movement है उसे control करता है, coordinate करता है muscles को आपस में movement करने। okay, मसल जो है प्रॉपरली अच्छे से मूव कर सकें तो उनका जो कोऑर्डिनेशन है उसे कंट्रोल करता है एंड मसल्स के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो बैलेंस है उसे कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में जो सेरेबेलम है ये हमारी हेल्प करता है। ओके, इसका क्या वर्क है सेरेबेलम का, मेंटेनिंग द बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो भी पोस्चर है, हम सिटिंग पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन में, ओके, जो भी हमारी बॉडी का पोस्चर है उसे भी कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम। ओके, so the cerebellum is important for making posture adjustment in order to maintain balance. Okay, and the vestibular apparatus lining in the inner ear balance the body. जो हमारा cerebellum part है ये किससे connected रहता है, ईयर में एक पार्ट होता है, ओके, जिसे कि क्या कहते हैं, वेस्टिबुलर apparatus लाइनिंग कहा जाता है। इन द इनर ईयर, ईयर में 3 पार्ट होते हैं, आउटर इनर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ओके, तो इनर ईयर का जो वेस्टिबुलर apparatus लाइनिंग है वो कनेक्टेड रहता है किससे, सेरेबेलम से, एंड ये मिलकर क्या करते हैं, थ्रू इट्स इनपुट फ्रॉम वेस्टिबुलर रिसेप्टर्स एंड proprioceptor, it modulate command to motor neurons to compensate for shift in body position. Okay, तो ये उस वेस्टिबुलर apparatus के साथ में क्या करता है, वहां से जो भी मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं उन मैसेजेस को रिसीव करता है एंड उसके साथ में कमांड देकर डिफरेंट काइंड की न्यूरॉन्स या नर्व्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं, नर्व सेल्स जो की हैं वो मैसेजेस को कैरी करने का या रिसीव करने का, सेंड एंड रिसीव करने का वर्क करते हैं। ओके, तो ये जो नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, ये कनेक्टेड रहती हैं। ऑडिटरी नर्व जो हम कहते हैं, ईयर में कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो नर्व्स ईयर में नर्व्स या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑडिटरी नर्व्स। ओके, तो ये सेरेबेलम से कनेक्टेड रहती हैं एंड हमारी बॉडी का जो भी पोजीशन है या पोस्चर है उससे बैलेंस करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम एंड इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन. ओके, इसे हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ये कहाँ लाई करता है, बेस ऑफ द ब्रेन में, ब्रेन का जो बेस है वहां पर लोकेटेड होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. It connected the brain to the spinal cord, okay, and it control involuntary action like breathing, digestion, swallowing and heartbeat. Okay, and जो brain stem है वो किससे connected रहता है, spinal cord से connected रहता है. Okay, brain जो medulla oblongata है वो किससे connected रहता है,
स्पाइनल कोड से, ओके। एंड इट्स लुक लाइक अ टेल लाइक स्ट्रक्चर, एक टेल की तरह स्ट्रक्चर होता है, या एक राउंडेड बर्च आप कह सकते हैं, स्वेलिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पर, एट द एंड ऑफ योर ब्रेन, ओके, हमारे ब्रेन के एंड में प्रेजेंट रहता है। टेल लाइक स्ट्रक्चर आप इसे कह सकते हैं, राउंडेड बर्च कह सकते हैं आप इसे। सो दैट्स व्हाई हम इसे क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं, ओके। एंड ये किससे कनेक्टेड रहता है, कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड, ओके। एंड ये जो हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्वेलोइंग, हार्टबीट, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, ओके। एंड जो ब्रेन है वो टू हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। सो द राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, and the left part of the brain control the right part of the body. Clear everyone? So thank you so much. Our next topic we will continue in our next class.